Hi users, welcome to Navi classes. This channel has been created to help all the students and job aspirants to learn in an easy way. We have tried our best to provide you original content. Hope you will appreciate our efforts by subscribing our channel and giving more likes and shares to our videos. This is our first ever video and here we will discuss the topic parts of speech. First of all, we will discuss parts of speech. Parts of speech is an important topic in English language. सबसे पहले देखिए होता क्या है parts of speech. The part of speech shows how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. There are 8 parts of speech in English language. These are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि whether parts of speech include articles or not. देखिए बता दें कि most of English classifications के according articles are not directly listed in parts of speech because articles are used to demonstrate noun. They can also be placed before a number or sometimes before an adjective also, but they are not directly included in the list of parts of speech. Now we will discuss all of these parts of speech one by one. Among parts of the speech, we will first discuss the topic noun. What is a noun? Noun refers to the name of a person, place, thing, etc. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम संज्ञा कहलाता है. Basically, there are 5 types of nouns: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन होता है कि आप किसी भी पर्सन को पर्टिकुलरली उसके यूनिक नेम से कॉल करते हो, जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, कोई भी नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम किसी पर्सन का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी कंट्री का नाम हो, किसी भी कॉन्टिनेंट का नाम है, किसी न्यूज़पेपर एजेंसी का नाम है, कोई भी जो यूनिक नेम होता है that is proper noun. Then comes common noun. Common noun, for example, boy, girl. जब आप किसी भी पर्सन को पर्टिकुलरली उसके नेम से कॉल ना करके उसकी जाति से आप उसे संबोधित कर रही हैं तो वो कॉमन नाउन होता है. Then collective noun. Collective noun represents a group. For example, a group of cows, sheep, which is known as herd, any group of students, that is class. This is known as collective noun, where a group is represented as a whole. Then comes material noun. Material noun, for example, plastic, gold, silver, aluminium, कोई भी material, कोई भी द्रव्यवाचक संज्ञा. Then abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है जिसमें आप किसी चीज को के नाम को नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी को या उसके आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन ना करके, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पोलाइटनेस, फ्रीडम, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Nouns are also known as naming words. After noun comes the pronoun. Pronoun क्या होता है? A pronoun is a word that is used in the place of a noun or a noun phrase to avoid repetition of that particular noun. जैसे कि I, me, mine, we, us, ours, they, etc. All these words are pronouns and these are used to avoid the repetition of the noun words.
Let us take an example that Ravi goes to school. Ravi plays cricket there. These are both different sentences, but the word Ravi is same, which is getting repeated again and again. So to avoid this repetition, we may call these sentences as Ravi goes to school, he plays cricket there. He word used here is a pronoun which stops the repetition of noun and makes the sentence look attractive. So pronouns plays a very important role in demonstrating the nouns. Now comes the topic verb. Verb is also a very important part of speech. Let us see what verbs are. A verb is a word which is used for saying something about some person or thing. It is a word or a group of words that is used to indicate that something happens or exists. क्रिया वो शब्द होते हैं जो किसी भी घटना के घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ देते हैं. Commonly, there are two types of words used in sentences, and these are helping verbs, which are also known as auxiliary verb, and main verbs. हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब, इन्हें आप सपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकती हैं. ये मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, एटसेट्रा. आफ्टर दीज कम्स द मेन वर्ब सच एज प्ले, डांस, सिंग, ईट, कुक, एटसेट्रा. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ बर्ड. We say a bird is flying in the sky. Here the word is a supporting verb which is helping the existence of the main verb, that is flying. Flying is here the main verb and is the supporting verb. So these auxiliary verbs are used to support the main verbs. अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. इट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन. विशेषण वे शब्द होते हैं जो हमें संज्ञा की विशेषता के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गुड गर्ल. द वर्ड गर्ल यूज्ड हियर इज अ नाउन एंड द वर्ड यूज्ड गुड इज एन एडजेक्टिव. गुड वर्ड जो है वो विशेषण है और वो हमें बताता है कि गर्ल कैसी है, मतलब कि गर्ल की क्वालिटी को ये डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये एडजेक्टिव है. लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल आल्सो. आई लिव इन अ स्मॉल हाउस. हियर द वर्ड स्मॉल इज आल्सो एन एडजेक्टिव जो कि हमें बताता है कि हाउस कैसा है, वेदर इट इज स्मॉल, वेदर इट इज बिग. So the word adjectives are also known as describing words. Adjective के बाद टॉपिक आता है adverb. An adverb is a word that adds more information about place, time, manner, frequency, degree, level of certainty of happening of any activity or event, answering questions such as how, in what way, when, where, to what extent something is going to happen. क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताएं. These words can also modify an adjective or another adverb also, or they have the property of describing a whole sentence also. For example, she sings loudly. The word used here loudly, it is an adverb. कि she sings, वह गाती है, but वो ऊंचा गाती है. Singing जो वर्ब है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसको क्लियरली डिस्क्राइब करने के लिए उसकी क्वालिटी को लाउडली वर्ड यूज हुआ है. दिस इज एन एडवर्ब. ही स्विम्स क्विकली. वह
तेजी से स्विमिंग करता है, मतलब फास्टली वो स्विम करता है। तो वर्ड क्विकली यूज्ड हियर इज टू demonstrate the quality or the action of the verb swim. So these are the adverbs. एक और important part of speech है preposition. Preposition क्या होता है? A preposition is a word which is used to link nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. प्रीपोजिशंस यूजुअली शॉर्ट वर्ड्स होते हैं और इनका यूज नाउन से पहले किया जाता है। प्रीपोजिशंस जो होते हैं ये पीपल को, ऑब्जेक्ट्स को, टाइम, लोकेशन, किसी भी सेंटेंस में इन सब चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच। इस सेंटेंस में एट वर्ड प्रीपोजिशन है क्योंकि बीच वर्ड है नाउन और उससे पहले यूज हुआ है एट वर्ब। एट वर्ब रिंग का कनेक्शन बताता है बीच के साथ क्या है, कि बीच पर रिंग गुम हुई है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। टू वर्ड यूज्ड हियर इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन, जो कि बताता है कि बुक का कनेक्शन किससे है, बुक का कनेक्शन मुझसे है, मतलब कि प्रोनाउन से है। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन या दूसरी जो भी वर्ड्स हैं सेंटेंस में, उनको जोड़ने के लिए, उनका लिंक समझने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन संयोजक शब्दों को बोलते हैं, मतलब कि जुड़ने वाले शब्दों को। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। तो इनको हम कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। कंजंक्शंस आर कंसीडर्ड टू बी इनवेरिएबल ग्रामर पार्टिकल। They may or may not stand between items they join. जरूरी नहीं है कि संयोजक शब्द बीच में जुड़कर ही दो सेंटेंसेस या तीन सेंटेंसेस को या ज्यादा फ्रेजेस को इकट्ठा करें। कंजंक्शन वर्ड्स का यूज स्टार्टिंग में भी हो सकता है और इन बिटवीन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंजंक्शन, कौन सा समुच्चय बोधक शब्द यूज कर रहे हैं। कंजंक्शन वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि एंड, बट, येट, सिंस, अनलेस, व्हाइल, बिकॉज, एटसेट्रा। जैसे कि आप कोई सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, आई गो टू बीच, आई सिट इन सनलाइट देयर। तो इन दोनों सेंटेंसेस को एक सिंगल सेंटेंस में जोड़ने के लिए हम एंड वर्ड का यूज कर सकते हैं। कैसे बना सकते हैं फिर हम? आई गो टू बीच एंड सिट इन सनलाइट देयर। सो एंड वर्ड यूज्ड हियर कनेक्ट्स बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस टुगेदर। इनके अलावा भी बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जब कंजंक्शन टॉपिक को हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द टॉपिक इंटरजेक्शन। Interjections are the words that are used to express strong feelings or sudden emotions. They may be used to express joy, surprise, excitement or enthusiasm. Interjections विस्मयादि बोधक शब्दों को कहते हैं जो भी आपकी किसी भी पीड़ा को, हर्ष को, आश्चर्य को व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाव, हुर्रे, oh, etc. All these are interjections. Grammatically, an interjection is not related to any part of the sentence, but it adds a very strong feeling, a very strong description to that sentence. Let us take an example that hooray, we have won the match. Hooray वर्ड का जो यूज किया है, ये वर्ड हमें दर्शाता है कि
हमें कितनी खुशी हुई है कि हम मैच जीते हैं। कोई और एग्जाम्पल लें, जैसे कि एलाश, वी हैव लॉस्ट द मैच। एलाश वर्ड को सुनते ही हमें पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में कोई दुख या कोई हम पीड़ा शो कर रहे हैं। तो इंटरजेक्शंस वो शब्द होते हैं जिससे हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं। आज के टॉपिक का यही एंड होता है और फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।